Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today in this video we will learn about types of chemical reactions. So let's start the class. If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Types of chemical change or chemical reaction. So there are mainly 4 types of chemical reactions. They are direct combination reaction, decomposition reaction, single displacement or we can normally say displacement reaction, and last one is double decomposition or double displacement reaction. So direct combination reaction. This direct combination reaction means it is that chemical reaction in which two or more than two substances, that here we have two or more than two substances, they combine together to form a single substance. Now here this one is very important, that in direct combination reaction we get only a single product, not more than one product. So we can see it like this, A plus B. So चलो ये reactant है, reactants लोग react कर रहे हैं to give a single product. Reactants can be more than two, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. So here are some examples. कार्बन प्लस ऑक्सीजन. कार्बन ऑक्सीजन यहाँ दो रिएक्टेंट है, दे आर कंबाइनिंग टुगेदर. कंबाइनिंग मीन्स व्हाट? मिक्स होना. सो दे आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज द ओनली सिंगल प्रोडक्ट. सेकेंड वन इज अमोनिया प्लस HCl. दे आर रिएक्टिंग टुगेदर टू गिव अमोनियम क्लोराइड. देन magnesium and oxygen, they are also reacting to give a single product, that is magnesium oxide. And at last I have ferrous chloride. It is reacting with chlorine and we are getting ferric chloride. Now a very important thing here is synthesis. यहाँ पर मैं already synthesis लिखी हूँ, पर synthesis का मतलब होता क्या है? Synthesis means it is that combination reaction, or you can say it is a part of combination reaction where two elements combine to give a compound. Means in this case the reactants will be only elements and they are two in number. Two elements react to give a compound. Okay, example, here I have written the example of synthesis. See, carbon एक element है, because synthesis का definition में बोला गया है यहाँ पर जो reactants होंगे वो elements होंगे. So carbon is an element, oxygen भी एक element है, दोनों रिएक्ट करके एक कंपाउंड दे रहे हैं, तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ सिंथेसिस. सिमिलरली ये भी एग्जाम्पल होगा, मैग्नीशियम इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, दोनों रिएक्ट करके दे रहे हैं सिंगल कंपाउंड, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा सिंथेसिस का. ओके, सो इन दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन मेनली यहाँ पर एलिमेंट्स लोग रिएक्ट करके कंपाउंड बना सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इफ़ दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं सो उस दो में से एक एलिमेंट होगा और दूसरा कंपाउंड होगा, बिकॉज ये कंडीशन तो हम लोग जस्ट पढ़ चुके हैं इन सिंथेसिस, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड. इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, दे कैन ऑल्सो रिएक्ट टू गिव अ न्यू कंपाउंड. एग्जाम्पल वो हम लोग को यहाँ पर दिखेगा, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड. सो यहाँ पर दिख रहा है ये एलिमेंट है क्लोरीन और ये है कंपाउंड. So they are reacting and we are getting another new compound. Similarly, third case में दिया है two or more compounds combine to form a single product. Means here compounds ही react करेंगे and we will get a single new product. So यहाँ पर compound कहाँ है? ये रे, ammonia is a compound, HCl is a compound. दोनों compound है, दोनों react करके दे रहे हैं new compound और new product, that is ammonium chloride. तो ये चीज़ें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पॉसिबल होता है, जितने भी कंडीशंस हैं ये सारे पॉसिबल होते हैं. तो सिंथेसिस का एग्जाम्पल भी ख़त्म, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी हो गया. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन. अभी हम लोग डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स व्हाट? डिकम्पोज का मतलब हम लोग को पता है टूटना या ब्रेक होना. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम लोग एक ही रिएक्टेंट को कंसिडर करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिएक्टेंट कितने नंबर में होंगे? ओनली वन. एंड वो रिएक्टेंट फिर डिकम्पोज होगा, टूटेगा.
वो डिकम्पोज होगा। आइदर वो हीट से हो सकता है डिकम्पोज, मतलब हम लोग ये रिएक्टेंट में रिएक्टेंट को हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, या फिर उसको हम लोग लाइट एनर्जी देंगे। लाइट एनर्जी मतलब क्या, रोशनी। या थर्ड कंडीशन ऐसा होता है कि हम लोग उसको ना इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। तो ये 3 कंडीशन होता है जिसमें वो आराम से टूट सकता है, एक तो जो हम लोग रिएक्टेंट यहाँ पर लेते हैं। एंड टूटने के बाद वो हम लोग को 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंस या प्रोडक्ट्स देता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड टूटता है टू गिव 2 और मोर सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस जो हम लोग को मिलता है ना, दैट प्रोडक्ट्स, वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और वो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। सो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो हियर आई हैव रिटन AB। सो चलो ये AB एक रिएक्टेंट है, ये डिकम्पोज होगा, टूटेगा, एंड वी विल गेट 2 और मोर व्हाट प्रोडक्ट्स। लेकिन यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें रिएक्टेंट विल बी 1। ओके, इससे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े हैं। कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स लोग कंबाइन करके एक प्रोडक्ट दे रहे थे। यहाँ उसका उल्टा है, दिस इज़ द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर एक हम लोग लेंगे रिएक्टेंट जो कि टूट के 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हम लोग को देगा। एंड ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, डिकम्पोजिशन हम लोग कैसे करवा सकते हैं, हीट से, लाइट से, या फिर इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी से। सो डिकम्पोजिशन 3 टाइप का होता है, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब होता है हीट। ये जो वर्ड थर्मल है इट मीन्स हीट। डिकम्पोजिशन का मतलब पता है। सो ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये हीट की वजह से होगा। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। सो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होगा, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। देन थर्ड वन इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल मीन्स लाइट एनर्जी का बात हो रहा है। सो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जो कि किसकी वजह से होगा, ड्यू टू हीट एनर्जी। सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय हीट एनर्जी। अगर हम लोग जो भी रिएक्टेंट ले रहे हैं डिकम्पोजिशन के लिए, अगर हम लोग उसको हीट नहीं करेंगे तो वो डिकम्पोज नहीं होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन है, हम लोग यहाँ जितना भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर में आएगा। फर्स्ट आई एम हैविंग मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, स्मॉल एस यहाँ लिखी हूँ, आप लोगों को पता होगा, दिस इज फॉर सॉलिड स्टेट। ओके, व्हेन इट इज हीटेड, सो हियर आई हैव मेड अ डेल्टा साइन। ये जो ट्राइंगल होता है ना, दिस इज कॉल्ड डेल्टा साइन, एंड डेल्टा का मतलब होता है हीट। कहीं भी अगर आप लोग ये डेल्टा देखते हो इक्वेशन में, इसका मतलब समझ जाना कि एनर्जी हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, हीट एनर्जी, हीट कर रहे हैं हम लोग, मेनली हीट का बात हो रहा है। ओके, सो व्हेन दिस इज हीटेड, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये डिकम्पोज होगा, ये टूटेगा, एंड वी विल गेट 2 न्यू प्रोडक्ट्स। एक हम लोग को मिल गया मर्क्यूरी Hg, जो कि यहाँ L लिखी हूँ मैं, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस है ना, तो हम लोग ऐसे एरो भी लगा सकते हैं, ये एरो इंडिकेट करता है कि इट इज़ अ गैस और ये उड़ जाएगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव पोटाशियम नाइट्रेट। सो व्हेन दिस पोटाशियम नाइट्रेट इज हीटेड, या फिर हम लोग हीट करेंगे, सो हम लोग को यहाँ पर 2 न्यू प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। एक है कंपाउंड जिसका नाम क्या है, पोटाशियम नाइट्राइट, एंड सेकेंड वन इज एन एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में एक आता है कि एक ऐसा नहीं, इस टाइप से पूछेगा कि इफ़ वी विल हीट पोटेशियम नाइट्रेट, सो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे। सो हम लोग को वहाँ पर लिखना है, उसको हीट करने से हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। गैस का ही मेनली हम लोग लिखते हैं। ओके, देन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से वी विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। वन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, और पूछ सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से एक ऐसा गैस का नाम बताओ जो रिलीज होता है। तो यहाँ पर कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता ही है। नाउ जैसे हम लोग सिंथेसिस पढ़े थे, किस में पढ़े थे, इससे पहले हम लोग डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़े थे। क्या पढ़े थे उसमें हम लोग कि सिंथेसिस में 2 एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स रहेंगे, दे विल कंबाइन करके हम लोग को एक कंपाउंड वो लोग बना के देंगे। वैसे ही
इसमें होता है एनालिसिस। डिकम्पोजिशन में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट एनालिसिस। एनालिसिस सिंथेसिस का ऑपोजिट, पूरा रिवर्स प्रोसेस होता है। यहाँ क्या होगा, हम लोगों के पास एक कंपाउंड रहेगा एंड वो कंपाउंड डिकम्पोज होके 2 एलिमेंट्स बनाएगा, पूरा उसका ऑपोजिट है। सो यहाँ पर ये एक कंपाउंड है, कंपाउंड टूटेगा एंड वो हम लोगों को 2 एलिमेंट्स देगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है डिफरेंस बताओ बिटवीन सिंथेसिस एंड एनालिसिस। तो हम लोगों को जितना भी पता है इनके बारे में सब पॉइंट लिख देना है। ओके, सो हियर आई एम हैविंग वन एग्जांपल ऑफ एनालिसिस। दिस इज व्हाट, अगेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, उसको हीट करे तो हम लोग को 2 एलिमेंट्स मिला। तो ये कंपाउंड हो गया, कंपाउंड डिकम्पोज होके 2 एलिमेंट्स वो हम लोग को दिया है। ओके, नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ और रिएक्शन के बारे में, इसी का रिएक्शन है। सो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप का है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ओके, सो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, या तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे या फिर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। सो इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड in aqueous or molten state is decomposed by the passage of electricity। मीन्स हम लोग यहाँ पर जो भी कंपाउंड लेंगे, ऑब्वियसली हम लोग डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग को कितना रिएक्टेंट लेना है, एक रिएक्टेंट लेना है। तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट लिया गया है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि हम लोग जो भी रिएक्टेंट लेंगे दैट शुड आइदर बी इन एक्वस सोल्यूशन या फिर मॉल्टन स्टेट। एक्वस सोल्यूशन मतलब उसमें पानी प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब वो सोल्यूशन जो हम लोग बनाएंगे उसमें वाटर शुड एक्ट एज अ सॉल्वेंट। एंड मॉल्टन स्टेट मतलब पिघला हुआ, बिकॉज ऐसा स्टेट में रहने से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करता है। इसके बारे में आप लोग क्लास 10 में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में। सो it is a decomposition reaction in which a compound in aqueous or molten state is decomposed by the passage of electricity। उसी को हम लोग बोलते हैं electrolytic decomposition reaction। Its examples are, here I have taken water and इस water में हम लोग थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करेंगे, बिकॉज एसिड ऐड करने से वाटर का जो पावर होता है ना टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस वाटर में थोड़ा एसिड को ऐड किए एंड वाटर में एसिड ऐड करने से उस वाटर को हम लोग बोलते हैं एसिड्यूलेटेड वाटर। सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू दिस वाटर देन दिस डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन गैस। सिमिलरली हियर आई हैव NaCl, नमक, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसको, वो भी मॉल्टन फॉर्म में रहेगा। सो अगर हम लोग मॉल्टन फॉर्म में उसको ले रहे हैं एंड उसको हम लोग वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, वो भी वहाँ डिकम्पोज होकर हम लोग को 2 प्रोडक्ट्स देगा। दे आर सोडियम एज वेल एज क्लोरीन। नाउ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग लाइट एनर्जी को दे के करवाएंगे, और इस रिएक्शन का एक और नाम है फोटोलिसिस। सो इट इज़ दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज डिकम्पोज्ड बाय लाइट एनर्जी। बाय व्हाट? लाइट एनर्जी। एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट, ये तो लैब में होता ही है ये वाला एक्सपेरिमेंट। सिल्वर नाइट्रेट को क्या करते हैं, व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट एनर्जी, सो एट दैट टाइम वी गेट सिल्वर, NO2 एंड ऑक्सीजन। सिमिलरली दिस हाइड्रोजन पैरोक्साइड जो कि एकदम वीक एसिड होता है, व्हेन इट इज एक्सपोज टू UV लाइट इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। तो जब हम लोग इनमें लाइट देते हैं ना तो ये लोग एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवेट होकर ये लोग क्या करते हैं, अपना रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। नाउ वन क्वेश्चन, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसका कलर पूछा जाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस? सो इट्स कलर इज रेडिश ब्राउन। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स कलर इज रेडिश ब्राउन। सो 2 टाइप का रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का 3 टाइप्स भी पढ़ चुके हैं विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम में इसका डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल्स और थोड़ा इधर उधर से घुमा के देता है। सो अभी इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का जो 2 रिएक्शंस बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।